माननीय अध्यक्ष महोदया जी पधार रही हैं। Oath for affirmation, please. Secretarial General. Shriman Sujit Chauhan, who is the Prime Minister of BJP ruling party, to take oath or affirmation. भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का पालन करूंगा। I do swear in the name of God that I will bear true faith to the Constitution of India and allegiance to the Constitution of India as well as established that I will uphold the sovereignty and integrity of India. I will faithfully and consciously discharge my duties as a Prime Minister. Thank you. To inform the House about sudden bomb attack in New Delhi. So on the behalf of the House, I would like to extend my heartfelt condolences to the bereaved family. Secretarial General may convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, madam. Now, all the members will stand silently for a minute. जनमन अधिनायक holding the Ministry of Defence. Second, we have Ms. Wai holding the Ministry of Home Affairs. Next, we have Ms. Shanika holding the Ministry of Education. Ms. Madhvi holding the Ministry of Media Representative. Next, Ms. Chaha holding the Ministry of Health and Care. And last, we have Ms. Khanna holding the Ministry of Finance. Opposition party can start. Honorable Speaker Madam and other member of this Parliament, I am Harsh, one of the member of this Parliament. Honorable Speaker Madam, why we stand united in condemning this act? I would like to caution the government, were there are not any warning signs, were intelligence reports ignored, the public demands transparency. We urge the government to review its security systems and ensure such negligence never occur again. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना बेहद दुखद और चिंता का विषय है। हमारी जांच की जा रही है। यदि कहीं किसी स्तर पर कमी मिलेगी तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। सरकार अपराधियों को नहीं है, हमें जवाब चाहिए। क्या खुफिया एजेंसियों ने मौके से पहले कोई अलर्ट जारी किया था? यदि हाँ, तो उसे लागू क्यों नहीं किया गया? घटना की रिपोर्ट की पूरी जांच की जा रही है। यदि कहीं किसी स्तर पर भी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है तो संबंधित अधिकारियों पर नहीं होता। हर बार आप ऐसे ही करते हैं। धमाके से पहले कोई अलर्ट जारी किया था? ये के आधार पर एजेंसियों में लगातार काम चल रहा है और बहुत जल्द ही दोषियों को सजा भी मिलेगी। धन्यवाद। Through you, I would like to ask the Ministry of Health regarding the bomb attack. What medical emergency measures were taken after the attack? Minister of Health and Care, please. Honorable Speaker Madam, through you I would like to inform the House that we are very much about the health of victims in this tragic situation. This is not the answer. Our duty was to save lives. Hospitals were immediately alerted and medical teams reached the site within minutes. Free treatment and blood donation camps were organized for the victims. I thank all the doctors, nurses and citizens who come forward to help save lives. Thank you, madam. 103 by Rupanshi. माननीय वित्त मंत्री जी, सरकार हर वर्ष सुरक्षा पर भारी बजट आवंटित करती है, फिर भी ऐसी घटना कैसे हुई? क्या आप बता सकते हैं? क्या मंत्रालय यह स्पष्ट करेगा कि पिछले वर्षों में आतंक निरोधक कार्यक्रमों पर कितना फंड खर्च किया गया?
के संरक्षण के लिए हर वर्ष प्राप्त बजट आवंटित करती है। यह धनराशि निर्धारित मानकों के अनुसार ही उपयोग की जाती है। इस घटना के बाद हमने सुरक्षा फंड की एक उपयोगों की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है। पिछले वर्षों में आतंक निरोधक तकनीक, खुफिया प्रणाली के अनुकरण और उपकरणों के अपग्रेडेशन पर उल्लेखनीय निवेश किया जाएगा। संबंधित विभागों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है, जिसे संसद के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। जो स्पीकर का रोल अदा किया है इस पार्लियामेंट सेशन में जो अयान इंटरनेशनल स्कूल में रखा गया था, कैसा आपको अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहेंगे और आपका नाम क्या है? I am Disha Rajput from Padhana, and I am very thankful to Nitin sir and Pooja ma'am that I am here only because of them and their teachers' hard work and also my hard work as well. I want to as I want to participate in this session as a speaker because speaker do not just play a role in the parliament session, also an passion it is, and in future I think so that I will become the speaker of the parliament. तो आपने कहा कि अगर भविष्य में आपको लगता है कि आपको मौका मिला स्पीकर बनने का, तो मुख्य रूप से आपने क्या चीज़ें सीखी है आज के इस सेशन में? क्योंकि स्पीकर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है पार्लियामेंट के अंदर, पोजीशन की बात सुनना, अपोजिशन की बात सुनना। तो यहाँ पर आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया पोजीशन और अपोजिशन ने जो बातें आपके सामने रखी? सभी से पहले तो दो पार्टीज होती हैं, ऑपोजिशन पार्टी होती है और एक रूलिंग पार्टी होती है। उसमें हमें सभी से पहले दोनों पार्टीज के बारे में पूरी बात जानकारी सुननी चाहिए। उसके बाद हमें उस डिसीजन पे पहुंचना चाहिए ताकि हम दोनों को मतलब इक्वल रख सके। हम किसी भी पार्टी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो उसमें इसी अकॉर्डिंग मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमें डिसीजन एक तो ट्रुथ की तरफ लेना चाहिए जहाँ पे सच्चाई हो। ये होता है कि झूठी खबरें फैल जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सच का साथ देना चाहिए एंड एज अ स्पीकर आई विल बी ऑनेस्ट फॉर माय पोजीशन। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज अयान इंटरनेशनल स्कूल में एक पार्लियामेंट सेशन रखा गया बच्चों के द्वारा, बहुत सी चीज़ें उन्होंने सीखी है, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई है। तो क्या लगता है ये आने वाले जो भविष्य के ये राजनीतिक लोग भी बन सकते हैं जिस हिसाब से इन्होंने रूलिंग और अपोजिशन पार्टी का किरदार भी निभाया है? देखिए, लीडर्स आर लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स। ओके, तो एक बच्चे हैं और आज उन्हें जो यहाँ समझने को मिला है, सीखने को मिला है, बहुत बड़ी बात है कि बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। बच्चों ने आज बिल्कुल पार्लियामेंट में जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के साथ यहाँ पर अपने आप को उस चीज़ को समझा है। और मैं तो दिखाना चाहूँगा, देखो अपोजिशन पार्टी, यहाँ पे रूलिंग पार्टी, प्रॉपर एक उस चीज़ का पैटर्न बना के हमारे स्टाफ ने भी बहुत मेहनत की है, पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आया कि बच्चों को पता चला कि पार्लियामेंट में क्या होता है, कैसे अपोजिशन जो है सरकार को घेरती है, वहाँ पर कैसे एक माहौल बनाया जाता है कि देश की आवाज़ को उठाया जा सके, हर जनता की आवाज़ को वहाँ पे पहुँचाया जाए। कहते हैं संसद के गलियारों से ही अक्सर जब लीडर बाहर निकल के आते हैं, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के देश के लीडर्स हुए हैं वहीं से निकल के आए हैं। तो मुझे भी पूरी उम्मीद है ऐसे ही यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी फ्यूचर में बहुत अच्छे लीडर्स बनेंगे और यहाँ से बहुत अच्छा अपने देश का नाम रोशन करेंगे। कहना चाहेंगे आप जिस प्रकार से एक अच्छा रोल अदा किया है बच्चों ने भी, और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? स्कूल पार्लियामेंट के थ्रू बच्चों ने ये दिखा दिया है कि उनमें बहुत जज्बा है कुछ कर दिखाने का, और बच्चों में जैसा जोश था देखते ही बन रहा था कि यस दे हैव लर्नड समथिंग। देखिए, टीवी पे ऑनलाइन तो सब चीज़ें दिखती रहती हैं, बट किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली रोल प्ले करना और दिखाना कि यस ये चीज़ें पार्लियामेंट में हो रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज कि बच्चों ने बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन करके दिखाया है। आने वाले टाइम में भी मैं यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे और आगे जाएं, और आज जैसे मैं देख रही हूँ कि जो भी मिनिस्टर्स हैं या स्पीकर हैं, उनका जो आप बॉडी लैंग्वेज देख पा रहे हैं, द वे दे हैव मैनेज द सिनेरियो, इट्स ऑसम। आई सैल्यूट टू देम, हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट्स। थैंक यू। कहना चाहोगे आप भी, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों ने जो रोल अदा किया है काफ़ी इम्प्रेसिव था, काफ़ी अच्छा रोल उन्होंने अदा किया। आप लोगों को कितना टाइम लगा इसको तैयार करने में, और बच्चों की मेहनत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमें नितिन सर एंड पूजा मैम की तरफ से सिर्फ एक डायरेक्शन मिली थी कि बच्चों को ये
सारा सेशन पार्लियामेंट का हमने रेडी करवाना है। सर हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, उन्होंने 10 to 12 डेज़ के अंदर ये सारा कुछ रेडी कर लिया था और आज इन्होंने ये सारा एक्ट करा। मैं थैंकफुल हूँ हमारे डायरेक्टर मैम एंड डायरेक्टर सर की, जिन्होंने हमें इतना अच्छी गाइडेंस दी कि बच्चों को ऐसी एक परफॉर्मेंस करानी चाहिए जिस वजह से कि हर पूरी नीलोखेड़ी में ये बात चली जाए कि जो हमारा स्कूल है वो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करा रहा है और ये जानकारी दे रहा है कि दिल्ली बॉम्ब अटैक में क्या हुआ। इवन मुझे नहीं लगता कि आजकल कुछ बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं होगी कि दिल्ली में क्या हुआ, बट इस एक्ट के थ्रू बच्चों तक ये नॉलेज ज़रूर जाएगी कि दिल्ली बॉम्ब अटैक में क्या हुआ, कितनी जानें चली गई, और ये सब आप सब देख ही रहे हो कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एक रोल प्ले करा। थैंक यू।